مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے چودھری پرویز الہی کی آڈیو لیکس کا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل بھیجنے کا مطالبہ کر دیا۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میاں نواز شریف نے کہا کہ پرویز الہی نے آڈیو میں انتہائی سنگین باتیں کی ہیں۔ اس آڈیو کے بعد عوام کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ گینگ آف 5 نے مل کر منتخب وزیراعظم کے خلاف سازش کی۔ منتخب وزیراعظم کی پاناما کے بہانے اقامہ میں 1 منٹ میں چھٹی کرا دی جاتی ہے۔ موجودہ حالات کے ذمہ دار باجوہ، فیض، عمران خان، ثاقب نثار، کھوسا، عظمت سعید اور جسٹس گلزار ہیں۔ یہی گینگ آف 5 خوشحال پاکستان کا قاتل ہے۔ پھلتے پھولتے پاکستان کو اندھیروں میں دھکیل دیا گیا۔ صاحب کی جو باتیں ہیں جو کل آڈیو لیکس ان کی آئی ہیں، اس سے زیادہ سنگین باتیں کسی سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں اور کیا ہو سکتی ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، پاکستانی قوم نوٹ کر لے میری یہ بات کہ انہی کرداروں کی وجہ سے آج پاکستان اس مقام پہ پہنچا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے نا وہ لڑک رہا ہے، سر کے بل گر رہا ہے اور سنبھلنے کا نام نہیں لیتا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں جی کہ یہ بہت ہی افسوسناک ہے، بہت سنگین ہے اور اس کا ہر طریقے سے بھرپور نوٹس چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے چیف آرگنائزر مریم نواز کے زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ صوبائی حلقوں میں تنظیم سازی سے متعلق امور پر غور کیا گیا۔ ناقص کارکردگی پر سابق ارکان کی سرزنش بھی ہوئی۔ مریم نواز نے سوشل میڈیا اور یوتھ ونگ کو سرگرم کرنے کی ہدایت کی۔ مریم نواز نے کہا کہ 1 ہفتے بعد کارکردگی کا دوبارہ جائزہ لیں گے۔ اجلاس میں پرویز رشید، بلال یاسین، خواجہ سلمان رفیق سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ آڈیو لیک سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے گلے کی ہڈی بن گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے آڈیو لیک کی تحقیقات کی باضابطہ اجازت دے دی۔ FIA نے بھی آڈیو فورنسک کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ آڈیو کی تصدیق ہو گئی تو پرویز الہی کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا۔ دوسری جانب نیب نے بھی پرویز الہی کے خلاف ٹھیکوں میں کک بیکس اور مبینہ کرپشن کی تحقیقات شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عمران خان نے بدھ سے جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں تحریک لاہور سے شروع ہوگی، کارکن تیاری کریں، ہمیں کوئی ڈرا نہیں سکتا، جیلیں بھر دیں گے۔ میں اناؤنس کر رہا ہوں انشاءاللہ بدھ سے وینسڈے کو اپنی جیل بھرو تحریک۔ میں اپنی ساری پارٹی کو آج کہہ رہا ہوں کہ تیاری کریں۔ ہم نے شروع کرنا ہے لاہور سے اور ہم پھر پاکستان کے بڑے بڑے ہر اگلے دن بڑے بڑے شہروں کے اندر ہم جیل بھرنے کی اپنی تحریک شروع کریں گے، جیل بھریں گے۔ ہم کیا بتانا کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم سب سے پہلے تو اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب خوف کے بت کو توڑ دو۔ ہمارا ملک کا آئین بڑے واضح طریقے سے کہتا ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہونی ہے۔ پاکستان کا جو آئین ہے وہ واضح کر دیتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں۔ 91 دن کا مطلب یہ کہ جو بھی گورنمنٹ ہے وہ آنی ہوگی۔ سپریم کورٹ نے ارشد شریف قتل کیس کی 13 فروری کی سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے اسپیشل JIT کو 3 سوالات کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ ارشد شریف کو دبئی چھوڑنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ ارشد شریف کے پاس حساس معلومات کے حوالے سے تحقیقات کی جائیں۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ کیسے پبلک ہوئی اور اس کے مقاصد کیا تھے؟ سپریم کورٹ نے کینیا کی حکومت سے تعاون حاصل کرنے کے لیے مزید 2 ہفتوں کی مہلت دے دی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، چیف منسٹر لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم پروجیکٹ سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ محسن نقوی نے ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کے بورڈ کی جلد تشکیل نو کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان اور نیدرلینڈز کے سفارتی تعلقات کو 75 سال مکمل ہو گئے، جس کو بھرپور طریقے سے منایا گیا۔ تفصیلات کے لیے فرزانہ صدیق کی رپورٹ۔
F9 पार्क में सुर्ख गुलाबी और पीले ट्यूलिप फूलों की बहार। पाकिस्तान और नीदरलैंड के सफारती तल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने की खुशी में नीदरलैंड एम्बेसी ने अपनाया छूता अंदाज और F9 पार्क में इन फूलों को लगा दिया गया। इन खूबसूरत फूलों की दिलकशी ने शहरियों को अपनी तरफ खींच लिया। फूल तो आपको पता है कि देखते ही आपको एक हैप्पीनेस का, खुशी का एहसास होता है। तो जैसे में पता चला कि यहाँ पर एग्जीबिशन लगा हुआ है और वो भी बहुत यूनिक किस्म के फूल हॉलैंड से स्पेशली इंपोर्ट किए गए हैं, तो बस फूलों की मोहब्बत में उन्हें देखने के लिए फिर हमने डिसाइड किया कि हम जाके ये फूल देखते हैं। बहुत खूबसूरत है और यहाँ पे आके मैं बहुत खुश हुई हूँ। ऐसे लगा है कि फूल, रंग, तरोताज़ा। गुज़श्ता बरस पाकिस्तान में सैलाब के बायस होने वाली तबाहकारियों के हवाले से तस्वीरी नुमाइश का भी एहतमाम किया गया, जिसमें होने वाले नुकसान और अवाम के दुख की भरपूर अक्कासी की गई। 2023 में ना पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के 75 साल मुकम्मल हो गए डिप्लोमेटिक रिलेशंस के। ट्यूलिप गार्डन के हवाले से दुनिया में 80% जो ट्यूलिप्स एक्सपोर्ट होते हैं वो हॉलैंड से होते हैं, तो ये इस वक्त 75 इयर्स का उनका गिफ्ट है। दूसरा अहम वाक़या जो पिछले साल का था, पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल साल था फ्लड्स के हवाले से और मुआशी हालात के हवाले से। तो हॉलैंड में जो माहिरीन हैं वो पानी के हवाले से माने जाते हैं, तो इसलिए ये हमने फ़ोटो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ किया जो कि हमें हाईलाइट कर रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं और हॉलैंड की कंपनियां, हॉलैंड के माहिरीन क्या क्या उसके हल बता सकते हैं। पार्क में लगाए जाने वाले ये खूबसूरत पौधे जल्द ही माहौल की दिलकशी में इजाफे का सबब बनेंगे। नीदरलैंड ने पाकिस्तान से खूबसूरत अंदाज में किया अपनी मोहब्बत का इजहार। F9 पार्क में लगे ट्यूलिप के इन खूबसूरत फूलों ने शहरियों के मन मोह लिए। कैमरामैन शमून यूनिस के साथ फरजाना सदीक, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कराची पुलिस ऑफिस पहुँच गए। वज़ीर आला सिंध ने इमारत के मुख्तलिफ मंजिलों का जायज़ा लिया। मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब, चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस गुलाम नबी मेमन वज़ीर आला सिंध के हमरा हैं। तो कराची पुलिस ऑफिस, जिसे कुछ देर पहले ही ऑपरेशन के ज़रिए क्लियर करवाया गया, दहशतगर्दों को हलाक किया गया, इसी पुलिस ऑफिस का दौरा करने के लिए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं मनाजिर भी स्क्रीन्स पर, और वज़ीर आला सिंध ने इमारत के मुख्तलिफ मंजिलों का जायज़ा लिया। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार, आगाह कीजिए। आपका अब से कुछ देर कबल जो कि कराची पुलिस ने एक बड़ा कामयाब ऑपरेशन करके KPO ऑफिस में जो दहशतगर्द थे उन्हें जहन्नुम हासिल किया। इस बात को लेकर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह फौरी तौर पर कराची पुलिस चीफ के ऑफिस पहुंचे। वज़ीर आला सिंध ने इमारत की मुख्तलिफ मनाजिल का जायजा लिया। इस मौके पर पुलिस एहलकारों ने जबरदस्त किस्म के नारे तकबीर के नारे लगाए और काफी जज्बाती मनाजिर जो है इस मौके पर देखने में आए। वज़ीर आला सिंध ने ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले एहलकारों को इस बात की यकीन दहानी कराई कि सिंध हुकूमत हर स्टेप पर उनके साथ खड़ी है, और उनका ये कहना था कि रेंजर्स, पुलिस, पाक आर्मी के जो जवान हैं उन्होंने बड़ी जवामर्दी के साथ इनका मुकाबला किया, और एक ऐसी शाहराह के ऊपर कि जहाँ पर ट्रैफिक जमा था, सिविलियन गुजर रहे थे, और एक बड़े इवेंट की मौजूदगी में इन दहशतगर्दों को जो उनके मकासद थे उसमें कामयाब ना होने दिया। और साथ ही साथ जिन 4 लोगों ने शहादत की है उनके लिए फातिहा ख्वानी भी की गई, और इस बात का आयादा किया गया कि हुकूमत, सियासतदान, पुलिस और दीगर काम नफ्स करने वाले इदारे मिलकर इसी तरह पाकिस्तान की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे, और शहर में मुख्तलिफ मकामात पर जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां हैं वो पुलिस एहलकार और जो दूसरे एहलकार बना रहे हैं उनकी भी तारीफ की गई। इस मौके पर फर्जन जो है वो पुलिस एहलकारों से, रेंजर्स एहलकारों से और आर्मी के जवानों से हाथ मिलाया गया और उन्हें शाबाश पेश की गई। ठीक है, शुक्रिया इक़्तिदार अनवर आपका। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की थी 24 न्यूज़ की बड़ी कवरेज। नाजरीन को लम्हा बलम्हा आगाह रखा। दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स के ऑपरेशन की पल पल की खबर दी। हमारे नुमाइंदे दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान फ्रंट लाइन पर महफूज मकामात पर रहते हुए जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अंजाम देते रहे। आज हमला हुआ कराची पुलिस ऑफिस पर, और इस दौरान तमाम तर लम्हात की कवरेज करता रहा 24 न्यूज़। हमारे नुमाइंदगान फील्ड में मौजूद रहे, इस मकाम पर मौजूद रहे, नाजरीन को लम्हा बलम्हा आगाह रखा। दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स के ऑपरेशन की पल पल की खबर दी। महंगाई की शरह मुल्क में 38.42% हो गई। हफ्तावार महंगाई की शरह में 2.89% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने नए आदादोशुमार जारी कर दिए। सबसे कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई 39.41% हो गई। सिर्फ पेट्रोल एक हफ्ते में 20 रुपये 74 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका।
घी 43 रुपये 96 पैसे, चिकन 31 रुपये 11 पैसे फ़ी किलो महंगा हुआ, चावल 4.5 रुपये, सादा ब्रेड 3 रुपये 6 पैसे महंगी हुई। और महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है, 38.42% हो गई है महंगाई। हफ्तावार महंगाई की शरह में 2.89% इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियात ने नए आदाद शुमार जारी कर दिए हैं और अगर बात की जाए कम आमदनी वाले अफराद की तो उनके लिए महंगाई की शरह 39.41% हो गई है। पेट्रोल सिर्फ एक हफ्ते में 20 रुपये 74 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका है। रवां हफ्ते 5 अशिया सस्ती जबकि 12 की कीमत बरकरार रही। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने बढ़ती महंगाई पर हुक्मरानों को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं हुक्मरानों में इतनी भी सलाहियत नहीं कि आफत के वक्त में कर्जे ही माफ़ करा लें। ये IMF की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते। देखिए सैयद नोमान गुल की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान भी बोल पड़े। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पेट्रोल फिर महंगा कर दिया गया, नए टैक्सेस भी लगाए गए, कर्जा हुक्मरान लेते हैं और अदा अवाम करते हैं। हुकूमत ने एक मरतबा फिर आवाम पर टैक्सों का बोझ लादा है। पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, बिजली की कीमत बढ़ाई है, गैस की कीमत बढ़ाई है और अपनी अय्याशियाँ, शाखर्चियाँ, नाअहली, करप्शन, लूट मार, उस सब का जो बोझ है वो आवाम पे डाल दिया है। तवील लोड शेडिंग पर हाफिज नईमुर रहमान के इलेक्ट्रिक पर भी खूब गरजे बरसे। सवाल उठाया कि के इलेक्ट्रिक को क्यों इतनी छूट दी जाती है, हर सियासी पार्टी इनकी सहूलतकार बनती है, ये इदारा अरबों रुपए खाकर बैठा है, इससे पैसे क्यों नहीं निकलवाए जाते। चाहता हूँ ये 170-72 अरब रुपए जो IMF के कहने पे इन्होंने टैक्स लगाया है, 662 अरब रुपए की नादहिंदा तो सिर्फ के इलेक्ट्रिक है। ये के इलेक्ट्रिक में ऐसी क्या बात है कि इसको शहबाज शरीफ भी कुछ नहीं कहते, इसाक डार भी कुछ नहीं कहते, इमरान खान भी कुछ नहीं कहते, असद उमर भी कुछ नहीं कहते, नवाज शरीफ भी नहीं कहते, जरदारी भी नहीं कहते। अमीर जमात इस्लामी कराची ने 11 बल्दियाती नशिस्तों पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी न करने के खिलाफ 19 फरवरी को एमेजिना रोड पर एहतजाज करने का ऐलान भी किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़।